dear moms. This is Farida Ali welcoming you all to a special and unique Mothers Workshop. As the name suggests, this is a workshop for the mothers, of the mothers, and conducted by a mother. I am not a pioneer of any field. I am just a mother having a heart-to-heart talk with you, dear moms. So welcome once again. On behalf of Team Prabhat, I welcome you all. In almost all the languages, there are many thoughts, quotes, poems, and songs composed on mothers. So let's begin this Mothers Workshop by sharing with you two quotes on mothers. The first one says, God could not be everywhere. Therefore, he made mothers. भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई है. And the next one is, a mother is she who takes place of all others, but whose place no one else can take. कोई भी व्यक्ति एक बच्चे की जिंदगी में माँ की जगह नहीं ले सकता, लेकिन एक माँ अपने बच्चे की जिंदगी में किसी की भी जगह ले सकती है. तो आप समझ ही गए होंगे कि एक माँ का अपने बच्चे की जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंस है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मदर्स रोल इन her child's life. Scientific evidences have shown that kids begin to learn a lot from their mother way before they are born. बच्चे इस जिंदगी में आने से पहले ही अपनी माँ से सीखना शुरू कर देते हैं. So definitely a mother is the child's first teacher. अब टीचर होने के नाते आपने सिर्फ बच्चे की पढ़ाई लिखाई देख ली और ख़त्म हो गई बात, ऐसा नहीं है. इन दिस पेंडेमिक टाइम, जब बच्चे अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो एज अ मदर इट इज़ योर ड्यूटी टू स्पेंड quality time with the child. Get involved with your child. इत्मीनान से बैठिए. दिन भर में कम से कम 1 घंटा अपने बच्चे के साथ बैठिए. उससे बातचीत कीजिए. उससे प्रश्न पूछिए. It should not always be a happy talk. Sometimes you should also ask questions like, बेटा आज दिन भर में ऐसा कुछ हुआ जो आपको अच्छा ना लगा हो या जिससे आपका दिल दुखा हो. This kind of questions will definitely strengthen your relationship with your child and improve your communication with your children. In the present scenario, students are attending online classes from home. So as a mother in the role of a teacher, ask your child whether he or she has completed his or her work. उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने अपना पूरा स्कूल का काम ख़त्म किया है, कुछ ज़्यादा काम पेंडिंग तो नहीं है. एंड इफ़ दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, ask them whether they have submitted it online or not. This is your role as a teacher in the present pandemic situation. Now we talk about the mother's role as a skill and value trainer. In this 21st century, when you are nurturing the kids of modern era, it becomes a duty of a mother to teach or to imbibe in the child values and skills also. अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छी बातें, अच्छी आदतें और अच्छे संस्कार भी सिखाइए. अच्छे संस्कार सिखाने में माँ का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है. And for this, dear moms, you don't have to join special classes. You already know how to imbibe and nurture good values and skills in your child. ये आप अपने बच्चे को अपने व्यवहार से ही सिखा सकते हैं.
Now, when we talk about role, व्यवहार, let's talk about a mother's role as a role model. For every child, his or her mother is a role model. रोल मॉडल वो व्यक्ति होता है जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं। तो एक बच्चा डेफिनेटली अपनी मम्मी की तरह ही बनना चाहता है। सो ट्राई टू इम्बाइब पॉजिटिविटी इन योर चाइल्ड। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं ऑफ अ मदर एज अ रोल मॉडल। बातचीत करते समय आपके बच्चे ने आपके साथ शेयर किया कि आज ऑनलाइन क्लासेस में टीचर से ये गलती हो गई मॉम, तो उसी समय बच्चे के सामने स्कूल और टीचर को बुरा भला कहना मत शुरू कर दीजिए। इससे स्कूल और टीचर की छवि नहीं खराब हो रही है, बल्कि आपके बच्चे के मन पर गलत छवि पड़ रही है। द चाइल्ड इज लर्निंग अ बैड वैल्यू। What kind of a bad value? He or she is learning to react spontaneously. वो सीख रहा है कि spontaneously react कर जाओ बिना कुछ सोचे समझे। इसकी बजाय अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो it would be more beneficial. Tell your child that the teacher is most of the time correct. टीचर ज़्यादातर समय पर करेक्ट होती है, बट शी इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन वो भी एक इंसान है, उनसे भी गलतियां हो सकती है। सो नो प्रॉब्लम, द टीचर इज मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट, बट समटाइम्स इवन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग शी कैन कमिट मिस्टेक्स। ट्रस्ट मी, इफ यू डू दिस वे, बच्चा आपको एक रोल मॉडल की तरह जो देखता है तो आपसे एक पॉजिटिव माइंडसेट ही सीखेगा। तो चलिए अब बात करते हैं मदर्स रोल एज अ डिसिप्लिन एंड रूटीन मेंटर। बोथ मदर एंड चाइल्ड डियो शुड प्रिपेयर एन इंटीग्रेटेड टाइम टेबल फॉर देमसेल्फ। माँ और बच्चे दोनों ने ही अपने लिए एक इंटीग्रेटेड टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज़ दिस इंटीग्रेटेड टाइम टेबल? एक टाइम टेबल जिसमें आपकी हर चीज़ के लिए समय हो, राइट फ्रॉम स्टडीज़ टिल एंटरटेनमेंट टिल मी टाइम, उसे हम एक इंटीग्रेटेड टाइम टेबल कहेंगे। ये हमारी गलत फहमी है कि टाइम टेबल सिर्फ पढ़ाई के लिए बनाए जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द मदर एंड द चाइल्ड प्रिपेयर्स एन इंटीग्रेटेड टाइम टेबल एंड दे फॉलो इट। नाउ व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव मी टाइम इन द इंटीग्रेटेड टाइम टेबल? और ये मी टाइम क्या होता है? पूरे दिन भर में ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने लिए कुछ क्षण ज़रूर निकालें। ऐसा देखा गया है कि जो लोग ऐसा नहीं करते वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं आगे चल के। सो रिमेंबर, मी टाइम and an integrated timetable is very necessary for both the mother and the child. अब टाइम टेबल तो बना लिया, वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज यू फॉलो द टाइम टेबल। और टाइम टेबल कब फॉलो हो सकते हैं? जब आप उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें। सो लेट्स टॉक अबाउट मदर्स रोल एज अ डिसिप्लिन मेंटर। ओके, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जीवन के हर क्षेत्र में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट इफ वी कंसिडर द प्रेजेंट पेंडेमिक सिचुएशन, लेट्स टॉक अबाउट डिसिप्लिन इन ऑनलाइन क्लासेस। आजकल जब बच्चे अपने घर से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो एज अ मदर teach them the etiquettes and manners of online classes. उन्हें छोटी छोटी बातें सिखाइए, जैसे क्लास समय से ज्वाइन करें, join the online classes on time so that it is not creating disturbance for the teacher and the fellow classmates. क्लास में अपना माइक म्यूट रखिए and
वीडियो ऑन रखिए. In the online classes, mute your mics and keep your videos switched on so that the teacher can see you. If possible, बच्चे को एक अलग से रूम में बैठाइए ऑनलाइन क्लासेस के वास्ते, और उसके पीछे की दीवार एक प्लेन दीवार होनी चाहिए ताकि आपके घर की सीनरी टीचर का कंसंट्रेशन खराब ना कर रही हो. टीच द चाइल्ड the basic manners and etiquettes, that if he or she is having any query or question, he or she can raise the hand. Raise hand option का use करिए अगर आपको कुछ पूछना है तो. सो ये सारी चीज़ें, ये सारे डिसिप्लिन, ये सारे एटिकेट मैनर्स आप मॉम्स को अपने बच्चों को सिखाना है इन द प्रेजेंट ऑनलाइन क्लास सिनेरियो. As we have already discussed that the mother is the child's first teacher, and यकीन जानिए she is the best teacher. Now let's talk about mother's role in teaching trust and security. Mothers are trusted by God, so they are bestowed with the responsibility of being a mother. उसी प्रकार का भरोसा, विश्वास, जिस तरह का भरोसा और विश्वास भगवान आप पे करते हैं तभी आपको एक बच्चे की जिम्मेदारी दी है, उसी तरह का भरोसा आप भी अपने बच्चे पर करिए. And how can you develop this kind of trust? This kind of trust can be developed by unconditional love. Give unconditional love to your child. My dear moms, don't misunderstand this unconditional love with blind love. इसे अंधे प्यार से मिस्टेक मत करिए. You should be vigilant in the present scenario. You should be vigilant. सतर्क रहिए. इतना भरोसा मत करिए अपने बच्चे पे कि if the child is asking you for your mobile phone, for the laptop or for any other gadget, by saying that he or she wants it for some study purpose, don't just give it. देखिए कि आपके बच्चे ने आपसे मांग के जो गैजेट लिया है पढ़ाई का कहकर, वो उसका इस्तेमाल पढ़ाई के लिए ही कर रहा है या नहीं. सतर्क रहिए, विजिलेंट रहिए. कीप एन आई ऑन वॉट योर चाइल्ड इज डूइंग ऑन द नेट. यूट्यूब देख रहा है तो यूट्यूब पे किस प्रकार के वीडियो देख रहा है. If he or she is watching cartoons also, देखिए कि वो किस प्रकार के कार्टून देख रहा है, किस प्रकार के वेबसाइट सर्व कर रहा है. बी विजिलेंट, ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में. ट्रस्ट डेवलप करने के साथ साथ, विजिलेंट रहने के साथ साथ, देयर इज़ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड द थिंग इज़ टीच द चाइल्ड अबाउट इंटरनेट सिक्योरिटी. हर मॉम को अपने बच्चे के साथ बैठ के इंटरनेट सिक्योरिटी और साइबर क्राइम्स के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. अपने बच्चे को सिखाइए कि इंटरनेट पे वो अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपनी स्कूल का नंबर, अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर किसी भी हालत में किसी के भी साथ कभी भी शेयर न करें. टीच योर चाइल्ड नॉट टू शेयर एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन द नेट. टॉक टू योर चाइल्ड, मेक हिम और हर अवेयर about the cyber crimes and tell them the ill effects of internet so that they become aware and get acknowledged about them. Now let's talk about the mother's role as a family bonder. A mother is a backbone of the family. So teach your child the importance of family.
Teach your child that blood is always thicker than water. अपने बच्चे को फैमिली का इम्पोर्टेंस समझाइए, उन्हें फैमिली गैदरिंग सेलिब्रेशन में ज़रूर लेके जाइए ताकि वो अपने कज़न अंकल आंट और अपने डिस्टेंट रिलेटिव्स को पहचान सके। ऐसा ना हो कि बच्चा अपने माँ बाप के अलावा फैमिली में किसी और को पहचान ही नहीं रहा है। सो बीइंग अ मदर, being the backbone of the family, it becomes your responsibility to inculcate family values and love in your child. दिन भर में एक समय का खाना सारे लोग साथ मिल बैठकर खाइए। अब साथ तो बैठ गए, ऐसा ना हो कि सारे अपने अपने मोबाइल पर ही लगे हुए हैं। Make it a point that particular time of the meal you all are having some cheerful and happy talks with each other. So make it a point that you have at least one meal together, the entire family together. A mother's role as a family bonder is very important. Acquaint your child with the importance of a family. Mother's role in being thoughtful, sensitive, and practical. As a mother, dear moms, it is very important that you be a patient listener. आप अच्छे listener बनिए। ऐसा होता है बहुत से केसेस में कि बच्चा अपनी माँ के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहता है, लेकिन आप अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि आप बच्चे को डांट कर भगा देते हैं। नो 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 नो, प्रेजेंटली आई एम बिजी, आई हैव नो टाइम फॉर योर किडिश थिंग। ये बचकानी बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। अगर आप बिजी भी है डियर मॉम्स, तो बच्चे से बड़े प्यार से कहिए कि माय डियर चाइल्ड, प्रेजेंटली आई एम वेरी बिजी, लेट्स सिट एंड टॉक टुगेदर इन द इवनिंग और एट नाइट। हम फुर्सत से बैठ के बात करते हैं बेटा, अभी मैं इतनी बिजी हूँ कि मैं आपकी बात ध्यान से सुन नहीं पा रही हूँ। This is the way to answer. So as a mom, be a very, very, very good listener. एक अच्छे listener बनिए। Now, what is the mother's role in being sensitive and practical? बच्चे की हर छोटी छोटी बात आप sensitively सुनिए। Try to reach to some conclusions from his or her talks, and always जब भी बच्चा अपने पास या आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है तो try to give practical solutions. इम्प्रैक्टिकल बातें बच्चे को बिल्कुल मत सिखाइए। इट कुड हर्ट हिज और हर फीलिंग्स, है ना। बच्चे को अगर हम परियों की दुनिया में रखने की कोशिश करेंगे, फिर जब बच्चे का रियलिटी से सामना होता है तो उसे बहुत मुश्किल होती है। सो प्लीज, व्हेनेवर यू गिव सॉल्यूशंस टू योर चाइल्ड, गिव प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। जैसे कि हम बच्चे से डिस्कस कर रहे हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन में हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इज़ नॉट वेरी गुड बिकॉज ऑफ द XYZ reasons. It is very good that you are sharing a practical thing with your child. But don't tell him or her कि बेटा आपकी पढ़ाई पे बहुत खर्चा हो रहा है। No, my dear parents. Here you are becoming impractical because you're calling educational expenses as expenditure. ये एक्सपेंडिचर नहीं है माय डियर मॉम्स, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। हम बच्चों की ब्राइट फ्यूचर के लिए कितनी सारी पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यकीन जानिए उसमें ये जो एजुकेशन है दैट इज द best investment. So don't be impractical to curtail your educational expenses behind the curtain of the pandemic. Be practical enough to understand this के educational expenses या expenditure are not expenses, they are investment for your child's future. Teach your child
द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन। उसे समझाइए कि बेटा एजुकेशन इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट और स्कूल की जगह कोई भी नहीं ले सकता। टीच दिस टू योर चाइल्ड। Now let's talk about mother's role in innovation. Innovation means doing new things. आप अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ नवा करते रहिए। उसकी पढ़ाई लिखाई का रिवीजन भी सेम पुराने घिसे पिटे तरीके से ना ले। Try to bring innovation in it. Like as a parent, as a mother, we expect टीचर्स, हम टीचर्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने पढ़ाने के तरीके में नवे नवे इनोवेशंस लाते रहे। सिमिलरली एज अ मदर आपको भी इनोवेशंस लाने पड़ेंगे, नए नए तरीके सीखने पड़ेंगे। ट्राई टू बी टेक्नो सेवी। ऐसा मत कहिए कि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं समझता। नो, as a mother for your child you keep on learning new things. Try to be techno savvy. अगर हमारी स्कूल का उदाहरण ले तो बच्चे के लिए आप एनटैब से यूज़र फ्रेंडली हो जाइए। लर्न एवरीथिंग ऑन एनटैब। कैसे पिक्स खींचना, नहीं डियर मॉम्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्फीज। आप सेल्फीज लेने में तो बहुत एक्सपर्ट है। हम बात कर रहे हैं कि बच्चे के लिखे हुए वर्क, असाइनमेंट्स के किस तरह पिक्स लेना, उनको पीडीएफ में किस तरह कन्वर्ट करना, एनटैब पे किस तरह सबमिट करना, ये सब चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। डोंट जस्ट से कि आई एम नॉट अ टेक्नो सेवी पर्सन। ट्राई टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी। और डियर मॉम्स, हम तो हमारे बच्चों के लिए नई नई चीज़ें सीखते ही रहते हैं। वी हैव लर्नड टू कुक मैक्सिकन एंड इटालियन फूड्स। हमारे बच्चों के लिए हमने मैक्सिकन और इटालियन खाना भी बनाना सीख लिया है यूट्यूब से। सो थोड़ा सा टेक्नो सेवी होने में क्या हार्म है। लर्न technology for your child and implement it in your child's all-round development. बच्चे को सिर्फ ये कह के उसका पढ़ाई का रिवीजन मत लिए कि चल तू लर्न करके रख, मैं तेरा सुन लूँगी या तुझसे लिखवा के लूँगी। इतने सारे ऐप्स अवेलेबल है बच्चों के लिए। कुछ क्विज़ेस बनाइए नवी, उन्हें क्विज़ेस सॉल्व करना सिखाइए, उन्हें भी मज़ा आएगा एंड एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो लर्निंग समथिंग न्यू। और डियर मॉम्स, ये सब करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फ्रॉम यूट्यूब यू कैन लर्न एवरीथिंग। Now let's talk about mother's role as an excellent communicator. As a mother, you are the one who connects the school and the child. It is usually said that this education is a three-tier system comprising of the school, the student and the parents. So as a mother, you should be a very strong communicating link between the child and the school. अपने बच्चे की स्कूल और टीचर से प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, चाहे वो ऑनलाइन क्लास में हो, चाहे वो कोई और इशू को लेकर हो, अपने ग्रीवेंसेस बराबर से एक्सप्रेस किए। बी प्रिसाइज एंड पर्टिकुलर in expressing your problems and communicating them to the school. अगर आप अपनी डिफ़िकल्टी सही तरीके से, सही शब्दों में स्कूल के साथ शेयर करते हैं डियर मॉम्स, तो आप जानते हैं कि वी एट प्रभात विल गो आउट ऑफ द वे। हम लोग आउट ऑफ द वे जाके भी आपके प्रॉब्लम का, आपकी डिफ़िकल्टी का हल निकालते हैं। सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट होती है कि द प्रॉब्लम शुड बी कम्युनिकेटेड इन अ प्रॉपर मैनर यूजिंग प्रॉपर एंड प्रिसाइज वर्ड्स। Like we discussed before, once again I want to emphasize the point that teach your child the importance of education and school. अपने बच्चे को स्कूल और एजुकेशन का महत्व समझाइए,
उसे ये मत कहिए कि एजुकेशन पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो फिजूल खर्ची है, बल्कि उसे ये बताइए कि एजुकेशनल एक्सपेंसेस are not expenditures, they are investments, and teach the child to respect his or her teacher. हमारे देश में तो भगवान के बाद गुरु का दर्जा होता है. So teach your child to respect the teacher and remember the golden rule. What is the golden rule, dear moms? That the teacher is most of the time correct, but she is also a human being and sometimes she can commit mistakes. So please do keep this golden rule in your mind. Now dear moms, आप लोग कहेंगे कि ये सारी बातें तो वी आर ऑलरेडी डूइंग, हम लोग पहले से ही करते हैं. वी डू एवरीथिंग फॉर आवर किड्स बिकॉज वी आर सुपर मॉम्स. यस मॉम्स, आप लोग बिल्कुल करेक्ट है. यू ऑल आर सुपर मॉम्स बिकॉज यू ऑल आर मल्टीटास्किंग. सल्यूट है हर माँ को बिकॉज शी डज मेनी थिंग्स एट अ टाइम. घर देखना, जो लोग बाहर काम करते हैं वो काम देखना, बच्चों को देखना, फैमिली देखना इज नॉट अ जोक. सो यू ऑल मॉम्स आर सुपर मॉम्स. तो अब बात करते हैं कि मॉम्स तो सारी चीज़ें करते ही है, लेकिन कभी कभी हमारे बच्चे हमें उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. वी ट्राई टू गिव आवर 100%, बट द किड्स टेंड टू बी स्टबर्न. वो जिद करते हैं, जिद्दी हो जाते हैं. नाउ लेट्स सी फ्यू टिप्स हाउ यू कैन डील विद स्टबर्न किड्स. जिद्दी बच्चे या बच्चे अगर कभी कभी बहुत जिद करने लगते हैं तो उनके साथ कैसे डील किया जाए, इसके हम कुछ टिप्स देखते हैं. द फर्स्ट वन, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, टॉक एंड लिसन टू योर चाइल्ड. अपने बच्चे से, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि दिन भर में कम से कम 1 घंटा बैठकर उससे बातें करिए और उसकी बातें सुनिए, ताकि आप अपने बच्चे की जो जिद है वो कम कर सके और धीरे धीरे ख़त्म कर सके. देन द रूल इज स्टे कूल. ऐसा मत करिए कि अगर आपका बच्चा जिद पे अड़ गया है तो आप भी जिद पे अड़ गए. नहीं, तुझे पढ़ना है तो है ही है. डोंट डू दैट. गिव देम चॉइसेस. उसको पूछो, अगर बच्चा जिद पे आ गया उसे पूछो, अच्छा चल मैं तुझे मैथ्स पढ़ने को कह रही थी, तुझे मैथ्स नहीं पढ़ना, चल एक काम करते हैं इंग्लिश पढ़ते हैं. फिर उसे और चॉइसेस दो कि इंग्लिश में क्या करते बेटा, टेक्स्ट बुक पढ़ते कि पोएम्स पढ़ते कि क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते. फिर उसे बोलिए कि चल टेक्स्ट बुक की स्टोरी रीड करते हैं, ये तो एक कहानी के जैसे ही होते हैं. ऐसा करने से बच्चे के पढ़ाई के टाइम पे वो पढ़ाई ही कर रहा है, उसका पढ़ाई का समय भी वेस्ट नहीं हो रहा है और उसकी जिद भी कम हो रही है. सो गिव चॉइसेस टू योर चाइल्ड. नाउ अपने बच्चे को उसकी गलती रियलाइज कराने में आप उसकी मदद कर सकते हैं. अपने बच्चे से इतना अंधा प्यार मत करिए कि आप अपने बच्चे की गलतियां छुपाने लगे. अगर आप ऐसा करते हैं तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट यू स्टॉप डूइंग दैट. डोंट ट्राई टू हाइड योर चाइल्ड्स मिस्टेक. उसकी गलतियां छुपाने की कोशिश मत करिए, बल्कि उसे रियलाइज करवाइए कि यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक and that was not good. Today you misbehaved with your elders, it was not good. Today you disrespected your teacher, it was not good. Today you did something that I did not like it. So make your child realize his or her mistake. उसे इतना अंधा प्यार मत करिए कि रियलाइज कराना तो दूर, आप उसकी मिस्टेक्स छुपा रहे हैं. अगर आप ऐसा करते हैं तो यू एंड योर चाइल्ड विल लैंड अप इनटू बिग प्रॉब्लम. सो स्टॉप डूइंग दैट.
जैसे हम बच्चे को उसकी मिस्टेक्स रियलाइज़ करवाते हैं, वैसे उसे उसके गुड बिहेवियर के लिए भी अप्रिशिएट करो कि बेटा यस टुडे यू हैव डन अ वेरी गुड थिंग। अब मेरा गुड थिंग से ये मतलब नहीं है कि हम बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की ही बातें कर रहे हैं कि तू फर्स्ट आया, तूने 100 on 100 लाया, नहीं, उसकी छोटी छोटी बातें भी अब अक्नॉलेज करो और उसे अप्रिशिएट करो। जैसे कि बेटा आज तूने अपनी दादी माँ को पानी पिलाया, वेरी गुड बेटा, आई अप्रिशिएट योर जेस्चर। इससे उसे मोटिवेशन मिलेगा। सो अप्रिशिएट योर चाइल्ड्स गुड बिहेवियर। क्रिएट अ रूटीन, जैसे मैंने आपको बताई कि प्रिपेयर एन इंटीग्रेटेड टाइम टेबल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। और दोनों माँ और बच्चों को ज़रूरी है कि ये इंटीग्रेटेड टाइम टेबल डिसिप्लिन से फॉलो करे और इस इंटीग्रेटेड टाइम टेबल में मी टाइम भी होना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ वी टॉक्ड अबाउट इनोवेशन ऑल्सो। हर दिन कुछ ना कुछ, हर दिन नहीं तो कम से कम कुछ ना कुछ नवा सीखते रहिए और अपने बच्चे को सिखाते रहिए। नॉवेल्टी, डू नॉवेल्टी वर्क, क्योंकि मोनोटोनस काम करके एवरीवन गेट्स टायर्ड। रोज वही वही, रोज वही वही, देन द पर्सन गेट्स टायर्ड। सो डू नॉवेल्टी वर्क। Then we talk about never force your child. अपने बच्चे को, कभी कभी बच्चे इतना जिद पे आ जाते हैं कि even using this tips and tricks they are not ready to leave their stubbornness. So don't force your child. अपने बच्चे को फोर्स या पुश मत करिए, थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दीजिए। Then again approach your child. So dear moms, this was all we wanted to convey to you all, dear moms, through this mother's workshop. Now it's time to express gratitude, humble gratitude to our honorable director sir, director ma'am, academic director ma'am, principal ma'am, vice principal ma'am, and to each and every team member of Prabhat Kids School, because at Prabhat it is always teamwork. We believe in teamwork. Last but not the least, a note of gratitude to you dear moms for listening patiently. Even if you apply a small thing from this mother's workshop in your life, हमें ऐसा लगेगा कि जो हमारा एम था वो पूरा हुआ। Signing off is Farida Ali on behalf of Prabhat team. Thank you once again.